Good morning, sir. I welcome you, sir, to the launch of Intensified Mission Indradhanush 3.0. Sir, we are joined virtually by Honorable Minister of State Shri Ashwini Kumar Chaubey, sir, and also Health Minister from the state of Bihar, sir. So we are also joined virtually by mission directors of a number of states and SEPIOs from all the different states also, sir. Sir, I welcome Vandana ma'am, who is the SNMD NHM, and Preeti Pant ma'am, who is the Joint Secretary RCH, and Manisha ma'am, who have joined us. So we are also virtually joined by our partner agencies from WHO, BMGF, UNICEF, ITSU, and UNDP, sir. So to begin with, I would request Vandana ma'am to kindly deliver the welcome address and guide us, ma'am. Ma'am, please. Namaskar and morning, sir. Sir, at the outset, I'd like to extend a very warm welcome, sir, to you, Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, who has joined us online, Honorable Minister from Health Minister from Bihar, who has also joined us online. A very warm welcome to A very warm welcome to our colleagues from the states, the additional chief secretaries, principal secretaries of the states, the mission directors, the immunization officers from the states, district level officials who have joined us for this important program today, our partners who are with us in every step of this journey, WHO, UNICEF, UNDP, BMGF, and the ITSU, and my colleagues from the ministry. I'd extend a very, very warm welcome to all of you for this launch of the Intensified Mission Indradhanush 3.0. Sir, by way of background at the outset, sir, I'd like to submit that this is a flagship program of the government, and it was launched in December 2014. And the aim was to rapidly increase the full immunization of coverage of children to 90%, which as per NFHS 4 in 15-16 was hovering around 62%, sir. And mainly, sir, the focus was to reach out to the partially immunized children or the completely unimmunized, or what now the international organizations say, zero-dose children. So the entire aim was to reach the goal of equity, reach the last mile, and cover people who get either completely left out or who drop out partially along the way, because we now have 12 antigens that are covered for in our routine immunization program. So our program is in a way unique, because when I've been participating in several discussions, our program globally is also unique in the sense that it's a multi-antigen coverage program, sir. Many times countries take up programs for a particular vaccine preventable disease. Like traditionally we have been doing the polio program, then we did the measles rubella program, or we do a JE campaign. However, sir, this is very unique in the sense that this program, over the duration that it runs, covers all the 12 vaccines which have to be given to the child, which the child may have missed out completely or partially. It also covers the pregnant women who may have missed certain doses. So I just wanted to place this fact before you, sir, that we have been as a country appreciated, and this model is being promoted for other countries also to take up these kind of catch-up campaigns, especially in the context of COVID, where a lot of countries have seen a backsliding on account of immunization. Sir, in terms of the overall coverage in the last few phases, sir, this was done in 7 phases in such left-out districts. We also had this included in the Gram Swaraj Abhiyan and the extended Gram Swaraj Abhiyan. This was also one of the programs, sir, which was taken up for the Honorable Prime Minister's awards to the district magistrates and district collectors. Unfortunately, those awards couldn't happen last year in April, and we are hopeful that they will happen this year. But districts have been selected to be awarded for their performance under the Mission Indradhanush. And a total coverage of the 3.76 crore children and 94.6 lakh pregnant women were vaccinated overall in 690 districts.
What we also saw, sir, just after the first two phases, there was an increase in 6.7% in the immunization rate. 190 districts which did the IMI, sir, which was launched by the Honorable Prime Minister from Vadnagar in Gujarat, sir. We did a special coverage evaluation survey, and it showed an increase of 18.5% in the full immunization coverage in these 190 districts, and almost 56 districts showed a jump of nearly 30%, and about 34 districts showed a jump of 20 to 30%. So this intensified approach was quite successful, sir, the intensified mission in the Dhanush. So this is a fact I wanted to place before you, sir. So we also have the benefit of the NFHS 5, sir, which you were kind enough to release some time back. So the NFHS 5 fact sheets have come for 22 states, and here also, sir, we are seeing that there is a big improvement in the immunization coverage, thanks to the concerted efforts under Mission Indhanush by all our states and UTs who are present with us today, sir. So, sir, now for this round, what we did was, sir, because especially in the earlier period of COVID, there was some slackening of the immunization coverage, and as you remember, sir, you had several rounds of meetings in groups of states when you addressed them to make sure that adequate attention is paid to the essential non-COVID services, also to conduct catch-up campaigns for immunization, for tuberculosis, etc. These meetings were conducted under your leadership, sir, and guidelines were also provided to the states. However, we wanted to do one complete round in this year, so that even now if certain children are missed, they must be covered within this year itself instead of carrying this forward to the next year, sir. And we have looked at the NFHS 5 data, sir, the recent data for 22 states, the HMIS data, the concurrent monitoring which WHO and UNICEF do, and triangulated this data to categorize the districts into districts based on their risk. So there are, sir, 250 high-risk districts which are going to be starting the intensified mission Indradhanush 3.0 under your leadership today, sir. The medium risk districts will have to sustain the immunization coverage, and through the catch-up activities like organizing additional session in those high-risk areas. So this is broadly the plan, sir, which is going to be launched today. The guidelines and the IEC materials, sir, will also be launched today under your leadership, sir. I'd also use this opportunity, sir, to you to request the states to not only take up this drive successfully along with the COVID vaccination that they are all doing in the field, but also to ensure that COVID appropriate behaviors also continue during this period, sir. So with this, sir, I thank you for sparing your valuable time to address the states and to lead the launch of the IMI campaign, sir. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am, for so beautifully giving the background and setting the context, ma'am. Sir, we are also joined online by Honorable Minister for State, Health and Family Welfare, Shri Ashwini Kumar Chaubey, sir. Sir, we would request you to kindly guide us to take forward the initiative, sir. आज मिशन इंद्रधनुष योजना के इस तीसरे फेज के शुभारंभ के अवसर पर हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हमारे सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय के श्री राजेश भूषण जी, श्रीमती वंदना गुरनानी, एडिशनल सेक्रेटरी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष से जुड़े हुए सभी राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जैसा कि बताया गया कि बिहार से हमारे स्वास्थ्य मंत्री बिहार राज्य से श्री मंगल पांडे जी भी उपस्थित हो गए हैं। मैं स्वयं बिहार के प्रवास में हूँ और सासाराम अपने संसदीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण दिशा की बैठक में यहाँ उपस्थित थे।
आज हम इस सघन धनुष टीम के शुभारंभ के अवसर पर जो पब्लिक हेल्थ पर भारत के जो निश्चय को दर्शाता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि जरूरी सेवाएं जो वैश्विक आपदा के इस मंदी के दौर में हम उसको सुचारू रूप से कैसे रखें, ये भारत की पब्लिक हेल्थ के पद पर एक और गौरवमयी गाथा है, कदम है, इसमें कहीं दो मत नहीं। इस तरह के अभियान चलाने में ये भारत की क्षमता को भी दर्शाता है, जबकि इसके समानांतर हम इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में 16 जनवरी को प्रारंभ हुआ और आज देश और दुनिया में लोग हर तरह से लाभान्वित भी हो रहे हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। भारत के संदर्भ में मिशन इंद्रधनुष अभियान बहुत ही स्वरूप सिद्ध हुए हैं और पिछले अभियानों में यह दूरगामी परिणाम भी हमने हासिल किया। आप सबको मालूम है कि 2014 में मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ हुआ था। भारत में अभी तक 7 फेज पूरा हो चुका है और इसमें 690 जिलों में पूरे हुए सभी आंकड़े आपको श्रीमती वंदना गुरनानी के द्वारा अभी दर्शाया गया, आप सभी इसके साक्षी भी। और जहां तक इंद्रधनुष मिशन में अब तक 3.76 करोड़ बच्चे और 94.6 लाख गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण का काम संपन्न हुआ है। हम जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी में और इतने सघन टीकाकरण के कार्य को हमने अभी स्वास्थ्य कर्मियों का और फ्रंटलाइन वॉलंटियर्स का जो कार्य टीकाकरण का चल रहा है, लगभग इस भर में अभी तक 1,01,88,007 वैक्सीनेशन के टीका आज सुबह तक पड़ चुका है। लगभग 6,98,674 सेशंस हो चुके हैं। अभी तक एक्टिव केस हमारा 1.27% पूरे केस का लगभग है और जहाँ तक रिकवरी रेट जो है भारत का 98% रिकवरी रेट हो गया है और बिहार में 99.2% रिकवरी रेट हुआ। हम सबको ये मालूम है कि मिशन इंद्रधनुष और सघन मिशन इंद्रधनुष ने टीकाकरण कार्यक्रम को दुर्गम इलाकों में, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो मजदूर ईंट भट्टों में काम करते रहते हैं, उन महिलाएं जो ईंट भट्टों में काम करती हैं, अन्य प्रकार के निर्माणाधीन भवन में काम करते रहते हैं, उन क्षेत्रों में और घुमंतु लोग जो विशेष करके आज यहाँ है कल वहाँ, ये जो घुमंतु की टोलियां देश भर में अपने शिविर लगा करके रहने का काम करता है, महीने 2 महीने 3 महीने में या साल भर में बदलते रहते हैं, उनके बीच जो छूटा हुआ कोई है तो उसको पहुंचाने के लिए हमारे विभाग ने और राज्य सरकारों के सहयोग से हमने उसको सक्षम बनाने का काम किया। इन अभियानों से हमें सूक्ष्म कार्य योजना टीकाकरण सेवाओं को प्राप्त करने के लिए लोगों में जागरूकता और सहायक सिस्टम को और भी मजबूत करने के सहायता मिली है। और जहाँ तक मैं आप सबको यह आह्वान करना चाहूँगा
कि किसी भी समय हम अपने को इन सुरक्षा उपायों में ढिलाई न बरतें वर्तमान कालखंड में, और टीकाकरण की सभी गतिविधियों में कोविड से बचाव के संबंधित अपने व्यवहार का पालन करें। बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हम सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम सब लोगों से आग्रह कर रहे हैं पूरे देशवासियों से, और इसलिए उचित साफ सफाई, उचित आपस की दूरी, साबुन व पानी से अच्छी तरह हाथ धोते रहने का जो प्रबंधन, टीकाकरण स्थल को सुरक्षित और सुनिश्चित करना चाहिए, यह भी आवश्यक है। और इस प्रकार के कार्य देश भर में वर्तमान कालखंड में भी काफी दृढ़ता के साथ वो सब लोग कर रहे हैं। टीकाकरण सत्र के इस तरह से आयोजित करें कि सत्र पर ज्यादा जो भीड़ जो है, जहाँ टीका लगते हैं वो उतनी भीड़ एकत्रित न हो, इसका भी प्रयास हम लोगों ने किया है। राज्यों में सफल ढंग से इस प्रकार के काम हो रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सभी राज्य समाज में हेल्थ सिस्टम के प्रति फिर से विश्वास पैदा करने पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखें, और निश्चित रूप से जागरूकता के बिना पीपुल्स अवेयरनेस एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन, लोक जागरण और लोक सहभागिता, इसको भी सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। और इस जागरूकता पैदा करने के लिए उचित प्रसार जो सामग्री तैयार किए गए हैं, मैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी निवेदन करना चाहूंगा। मिशन इंद्रधनुष 3 के इस अवसर का यह एक अवसर है जिसमें हम हर छूटे हुए बच्चों के तक पहुंचे और उन्हें टीकाकरण करें। यह हमारा जो लक्ष्य है कैसे पूरा हो सकता है, इसको जगह जगह अपने ढंग से योजना बना करके हमें उसको सुनिश्चित करना। हमने सभी तरह के इस प्रशिक्षण हमने पूरी कर ली है, और सभी कार्यक्रमों का इस अभियान का शुरू करने के लिए हम सभी तैयार हैं। और मैं सभी राज्यों और संबंधित लोगों से भी आग्रह करता हूं कि कार्य योजना पर केंद्रित करते हुए ये सघन मिशन इंद्रधनुष जो IMI 3.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों की भी साथ साथ जो हमारी चल रही है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, आज जो हमारे लिए कई चीज चुनौती का विषय है, उन सबको करते हुए इसके महत्व को समझना और इसको पूरी तरह से करना सब लोगों का पूरी कर्तव्य हो जाता है। मुझे मालूम है कि इंटेंसिफाइड मिशन धनुष का जो पहला राउंड है वो 22 फरवरी को और दूसरा राउंड 22 मार्च को होगा। आइए हम सब मिलकर सघन मिशन इंद्रधनुष के इस चरण को कामयाब बनाएं और इससे सुनिश्चित करें कि हमारे बच्चे वैक्सीन द्वारा बचाए जा रहे जो कारगर कदम है, जो बीमारियों से हम बच सकते हैं, उससे हम निजात पा सकते हैं, बचने का पूरा प्रयास करें ताकि भारत एक स्वस्थ और मजबूत सशक्त भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के रूप में उभर करके आए। मैं विशेष करके सभी पार्टनर एजेंसी जैसा कि WHO, यूनिसेफ, UNDP, इन सबका जो पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है इस बड़े काम में, मैं उन्हें भी शुभकामना देता हूँ और उसकी पूरी सफलता के लिए भारत का एक स्वस्थ और मजबूत पीढ़ी, नई पीढ़ी जो हमारी आने वाली है वो स्वस्थ रहे, सशक्त रहे, इस दृष्टिकोण से मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बधाई देते हुए और इस अभियान के पूर्ण सफल होने की शुभकामना भी देता हूँ। सभी राज्य सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे कार्य में आपका सहयोग प्राप्त हो रहा है, मैं आपको बधाई भी देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।
धन्यवाद सर। आप यहाँ आप बिजी होते हुए भी आपने समय निकाला और हमें गाइड किया कि किस तरह से मिशन इंद्रधनुष कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से हमें इसे सक्सेसफुली करना है। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। Sir, now I would request our Honorable Union Minister for Health and Family Welfare to launch the thing. So we would begin by a small video that is a curtain raiser, sir, just to give you an overview of the rationale of having the program, and then we would request you to launch it, sir. Mute. आवाज तेज करो। Sound. So now I would request you to kindly launch the Mission Indradhanush by pressing the button, and along with that the IMI material and the photo also. Sir. Thank you, sir. So we request you to launch them. So we request you to launch the posters also, sir. If you are. डॉक्टर अंदर आ जाइए। मनीषा आ जाओ। अभी आ गया मेरा घटा बताएंगे नहीं। थैंक यू सर। Thank you, sir, for launching the Mission Indradhanush Operation Guidelines and the IC material.
So I would request you to kindly guide us on how to take the initiative forward. Thank you. आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहयोगी श्री अश्विनी चौबे जी, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, आप दोनों, मुझे खुशी है कि वर्चुअली आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। यहाँ मेरे साथ मैडम वंदना गुरनानी जो एमडी हैं एनएचएम की और एडिशनल सेक्रेटरी हैं, वो भी जुड़ी हैं। मैडम प्रीति पंत जॉइंट सेक्रेटरी, डॉक्टर प्रदीप हल्दर एडवाइज़र इम्यूनाइजेशन, डॉक्टर वीना धवन जॉइंट कमिश्नर इम्यूनाइजेशन, और वर्चुअली सारे स्टेट्स के हमारे मिशन डायरेक्टर्स, इम्यूनाइजेशन के सभी संबंधित अधिकारी, एडवाइज़र्स और बहुत सारी हमारी प्रमुख इंटरनेशनल यूएन ऑर्गेनाइजेशंस, WHO, यूनिसेफ, UNDP, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अन्य सभी संस्थाओं के साथ में देश भर में और मेरे साथ यहाँ फिज़िकली जुड़े हुए मीडिया के सभी साथियों को मैं हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज के इस अवसर पर जब हम इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 को लॉन्च कर रहे हैं और इनफैक्ट लॉन्च कर दिया है, तो इस अवसर पर मैं देश की सभी माताओं को और सभी बच्चों को, छोटे बच्चों को विशेष रूप से हृदय से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस मिशन के लॉन्च पर उनको बधाई देता हूं, क्योंकि इसके सबसे महत्वपूर्ण लाभार्थी वो सब हैं। और ये अवसर उन सब हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को जो फील्ड में काम करते हैं, हमारी आशा वर्कर्स, हमारी दूसरी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारे हेल्थ सेंटर्स पर, हेल्थ फैसिलिटीज़ पर काम करने वाले सभी दूसरे अन्य सहयोगी स्वास्थ्य कर्मी, सारे देश भर के अंदर बहुत बड़ी एक फ़ौज है जो बहुत गहराई से, गंभीरता से, समर्पण भाव से ऐसे बच्चों की खोज करती है इस कार्यक्रम के दौरान, ऐसी गर्भवती माताओं की खोज करती है इस कार्यक्रम के दौरान, जिनको देश में एक वृहद कार्यक्रम होते हुए, ऐसा कार्यक्रम होते हुए जिसमें कि 12 ऐसे टीके, ऐसी वैक्सीन्स जिनको देने पर 12 बीमारियों से निश्चित रूप से बचा जा सकता है, जिनको हम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ कहते हैं, ऐसी बीमारियों से बचाने वाले टीकों को निःशुल्क उपलब्ध कराने का भारत सरकार का एक व्यापक कार्यक्रम होते हुए भी ये बच्चे छूट जाते हैं। कोई कोई तो शायद एक भी बीमारी के खिलाफ वैक्सीन को, टीके को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और किसी को कम टीके मिलते हैं। बहुत सारी गर्भवती माताएं छूट जाती हैं। इतने बड़े 135 करोड़ से ज़्यादा आबादी के देश में एक एक ऐसे बच्चे को, एक एक ऐसी माता को ढूंढना, घर घर जाकर ढूंढना, स्वास्थ्य केंद्र पर आने के लिए प्रेरित करना, उनको लगातार संदेश देना और एक समयबद्ध तरीके से ये सुनिश्चित करना कि देश में एक भी बच्चा हमारे इन वैक्सीन से वंचित ना रह जाए, क्योंकि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सोच के ऊपर काम करती है कि स्वास्थ्य सेवा
और विशेष रूप से बच्चों के लिए उनको वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ से बचाना, ये हमारा सर्वोपरि धर्म है। इस नाते सारे देश में इतना बड़ा वृहद ये कार्यक्रम है, लेकिन महान बड़ा कार्यक्रम होने के बावजूद भी अगर कुछ बच्चे छूटते हैं तो फिर ये व्यवस्था के लिए, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, सबके लिए तकलीफ़ का और दुख का कारण बनता है। और इसीलिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इस संकल्प के साथ इस मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की योजना बनाई गई थी कि हम देश में एक भी बच्चे को किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में इन टीकों से वंचित नहीं होने देंगे। और ये इस कार्यक्रम की इतनी बड़ी विशेषता है कि एक दो नहीं, 12 बीमारियों के खिलाफ जो टीका है उनसे बचाने की जो उस टीके में योग्यता और क्षमता है, उस टीके को हम निःशुल्क उपलब्ध भी कराते हैं। और तब तक उसके लिए बच्चे की खोज करते रहते हैं जब तक हम इस बात के लिए संतुष्ट नहीं हो जाते कि सब बच्चों को वो टीका मिल गया है। यद्यपि कार्यक्रम की रूपरेखा में बार बार हम 90% को टारगेट बनाते हैं और 90% का हम लक्ष्य लेकर उसको पब्लिसाइज करते हैं, लेकिन आप सबके मन में संकल्पना ये स्पष्ट होनी चाहिए कि हम सबको तब तक चैन की सांस नहीं लेनी है जब तक हम देश के अंदर 100% बच्चों को वैक्सीन और 100% गर्भवती माताओं को वैक्सीन देने का काम सुचारू रूप से और सफलतापूर्वक अर्जित ना कर लें। हो सकता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट को 90% तक पहुंचाने के लिए इनाम मिल जाएगा प्रधानमंत्री से, लेकिन अपने मन में इसको ईश्वरीय कार्य समझकर, ये भगवान का आशीर्वाद है ये काम से जुड़ना, इसको इसी भाव से लीजिए। और ये कोई ऐसा कठिन काम नहीं है, ये असंभव काम भी नहीं है। जो आज से 25-30 साल पहले असंभव लगता था, जब देश में 60% दुनिया के पोलियोग्रस्त बच्चे होते थे और पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए 100% बच्चों को एक साथ एक दिन में कुछ ही घंटे में पोलियो वैक्सीन की 2 ड्रॉप्स देने का लक्ष्य भारत ने अपने सामने रखा था, तो ये पहाड़ जैसा लगता था, असंभव लगता था। लेकिन इसको संभव किसने बनाया है? आप सब लोगों ने बनाया है। सारे देश में, स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में काम करने वाले लोग, ज़मीन पे काम करने वाली हमारी आशा वर्कर्स, और वो सब लोगों ने मिलकर इसको संभव बनाया। ये कोई साधारण बात नहीं है कि 135 करोड़ के देश में एक एक बच्चे को हमने एक दिन में एक साथ पोलियो के खिलाफ वर्षों तक हम लोगों ने एक प्रकार से इम्यूनाइज किया, और उसका परिणाम भी हमको, सुखद परिणाम भी हमको देखने को मिला कि पिछले 10 साल से भारत के अंदर एक भी बच्चा पोलियो जैसी बीमारी से ग्रसित नहीं हुआ है। हम सर्टिफाइड हो गए हैं पोलियो फ्री, और दूसरी भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ को कंट्रोल करने में हमने बहुत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। मैं ये जानता हूँ कि जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी, जिन्होंने पिछले सालों में घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवाइयाँ दी है, स्वास्थ्य केंद्र पर दी है, उनको आज इस बात की जानकारी को बार बार समझने में जितनी सुखद अनुभूति होती होगी, उस सुखद अनुभूति का कोई मोल नहीं है, उसका कोई आकलन नहीं हो सकता, उसकी कोई
इवैल्यूएशन नहीं हो सकता, उसकी कोई किसी भी प्रकार से मेजरमेंट नहीं हो सकता, उसको डिस्क्राइब करना भी मुश्किल है। और इसीलिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि ये जो काम आप जिसके साथ आज जुड़े हैं ये ईश्वरीय कार्य है। और मैं इसके लिए सभी देश के स्वास्थ्य अधिकारियों को, स्वास्थ्य मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर भी, मैंने भी पत्र लिखकर और सभी हमारे अधिकारियों ने पत्र लिखकर भी हाथ जोड़कर निवेदन किया है। आप सब अधिकारी भी जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सब से भी हाथ जोड़कर निवेदन है, इसकी गहराई को, गंभीरता को समझे। और इसकी गहराई और गंभीरता को समझकर ही हम जानते हैं कि हमारे ग्राम स्वराज अभियान में, हमारे एक्सटेंडेड ग्राम स्वराज अभियान में, पहले ग्राम स्वराज अभियान में 16,850 गांवों में 541 डिस्ट्रिक्ट्स में, और एक्सटेंडेड ग्राम सभा अभियान के अंदर स्वराज अभियान में 48,929 गांव और 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसको एक फ्लैगशिप प्रोग्राम की तरह इसको लिया गया था, इसके महत्व को देखकर। और जैसा मुझसे पहले वंदना जी ने भी दोहराया, अश्विनी जी ने भी कहा कि आप सबके सदप्रयासों के कारण देश में 3,76,00,000 बच्चों को ढूंढ कर हम ये वैक्सीन उपलब्ध करा पाए। देश में 94 लाख से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को हम ये जो टीका है ये उपलब्ध करा पाए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप सबके प्रयासों से जो शुरुआती दौर में इसमें सफलता का पैरामीटर 6.7% के आसपास था, बाद में हमारे 5वें फेज तक आते आते जैसा अभी बताया गया वो 30% तक कई स्थानों पर 12% और एवरेज 18.5% तक आ गया। यानी अगर वैक्सीनेशन का कवरेज कम है और हम अपने मन में संकल्प कर लें और जुट जाएं, तो हम निश्चित रूप से ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये कार्यक्रम संभव है। देश के हर बच्चे को 12 टीके लगाना ये संभव है। और आप सब जानते हैं कि इस बार स्वास्थ्य बजट में स्वास्थ्य को कितनी बड़ी प्राथमिकता दी गई है। पहली बार फाइनेंस कमीशन ने स्वास्थ्य के संदर्भ में एक स्पेशल एक्सक्लूसिव चैप्टर इस काम के लिए रखा है, स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से। उसके विस्तार के अंदर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन आप सब जानते हैं कि अगर इस देश के अंदर हम सब ने मिलकर प्रयास किया तो जैसा कि अभी आज ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ है, समय भी इसके लिए पर्याप्त दिया गया है। 22 फरवरी से 15 दिन तक और दोबारा से 22 मार्च से फिर 15 दिन तक, यानी इतना पूरा समय हमारे सबके सामने उपलब्ध है। और कैटेगराइजेशन भी किया गया है। हम जानते हैं कि हमारे 313 डिस्ट्रिक्ट्स, उनको लो रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में, हमारे 192 डिस्ट्रिक्ट्स को मीडियम रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में और 250 डिस्ट्रिक्ट्स को हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में जो है ये एक प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। हर एक डिस्ट्रिक्ट्स के लिए यद्यपि बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस यहाँ पर आज रिलीज़ की गई हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि आप में से कोई जो फील्ड में वर्षों से काम कर रहा है उसको किसी नई गाइडलाइन की ज़रूरत है। गाइडलाइन तो हम आपसे, आपके अनुभव से सीख कर गाइडलाइन को हम मंत्रालय के अंदर बनाते हैं।
लेकिन बार बार उसको इसलिए पब्लिश करते हैं कि सारे देश के अच्छे अनुभव और सारे देश में जो खामियां ध्यान में आती हैं उनके आधार पर सारे देश को एक स्थान पर संकलित करके जो सबकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर से जो बेस्ट हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं उसको हम लोग गाइडलाइन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसको आज अभियान के अंदर यहाँ लॉन्च भी किया गया है। एक जो हमारा IMI पोर्टल है उसको भी जो 2.0 का पोर्टल था उसको मॉडिफाई करके 3.0 का पोर्टल उसको डेवलप कर दिया गया है, उसको और ज़्यादा विस्तार दिया गया है। सब प्रकार की जानकारियाँ वहाँ पर हैं, सब प्रकार से वहाँ पर इंफॉर्मेशंस को अपलोड करना है। और आज के इस अवसर पर मैं आपको सबको इसलिए भी विशेष बधाई देना चाहता हूँ कि पिछला 1 साल बहुत कष्ट का था, बहुत तकलीफ़ का था। उस कष्ट और तकलीफ़ के कोविड पीरियड में भी हम सब आग्रह करते रहे आप लोगों से, और बराबर उस दौरान भी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन सफ़र ना करे, हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन सफ़र ना करे, और साथ साथ लोग प्रयास भी करते रहे। और उसके कारण कोविड के कारण निश्चित रूप से थोड़ा बहुत सेटबैक हुआ, लेकिन उस सेटबैक से उभर कर दोबारा से हम वापस ट्रैक पर आ गए हैं। और ट्रैक पर आकर तुरंत हम उन कमियों को और ज़्यादा ऊर्जा के साथ कंपेंसेट करते हुए हम आगे बढ़ने का आज संकल्प ले रहे हैं। इतने बड़े अभी आपने जो जनवरी के अंत में लॉन्च किया गया भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा, आपने पोलियो की वैक्सीन सारे देश को अभी दी है। अभी कोविड की वैक्सीन आप सारे देश में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दे रहे हैं। बहुत शीघ्र देश की आम 50 वर्ष से ऊपर की जनता को देने की प्रक्रिया में आप सब जुड़ेंगे। और मैं जानता हूं कि आप सब के ऊपर बहुत प्रकार का बोझ है। हेल्थ सिस्टम्स को हर समय पर एक्टिवेटेड रखना, उसको जागरूक रखना, उसमें प्रोएक्टिवली काम करते रहना, इसके लिए बहुत सारी ऊर्जा और बहुत सारे संकल्प और विश्वास की आवश्यकता होती है। इन सब पैरामीटर्स पर आप सब खरे उतरे हैं, इसीलिए देश आज सारे दुनिया में बड़े विश्वास के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सारी दुनिया में सराहना हो रही है, भारत के स्वास्थ्य कर्मियों की सारी दुनिया में सराहना हो रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज़ के सहयोग से उनके साथ मिलकर हमारी सभी स्टेट गवर्नमेंट्स आने वाले समय में हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, 12 वैक्सीन्स जिसमें हम देते हैं सबको, बच्चों को, और इस मिशन इंद्रधनुष में जिसमें 12 की 12 वैक्सीन्स को हम फिर से सुनिश्चित करते हैं कि ढूंढ कर हर बच्चे को दी जाए, कोई छूटे नहीं। इसमें भी शायद विश्व में कोई अगर कीर्तिमान स्थापित हो सकता है या उस दिशा में देश बढ़ रहा है तो वो भारत है। मैं आप सबको आज के इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, आपकी सफलता की कामना करता हूं, भगवान से आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं। और इसी के साथ मिशन इंद्रधनुष 3.0 के लॉन्च की औपचारिक घोषणा करता हूं, जिसके लिए आप सब लोग 22 फरवरी से औपचारिक तौर पर देश के अंदर इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को प्रारंभ करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। Thank you very much, sir, for your kind words, guiding us and energizing the whole initiative and highlighting the importance of the initiative, sir. So with this, I would like to also thank Shri Ashwini Kumar Chaubey, sir, for joining us in spite of his busy schedule, the health minister from the state of Bihar.
all the mission directors, chief secretaries who have joined us, and also the SCPIOs, the partners. And here also we are joined by Vandana ma'am, who was busy with the NPCC, and she took her time to join us here. Preeti Pant ma'am, for continuously guiding us throughout the whole process and preparations, and Pradeep Bhadra sir, Manisha ma'am. So with this, sir, with your due permission, we could close the event. And again, a lot of thanks to everybody and best wishes for a successful carrying out Mission Indradhanush 2 rounds. Thank you so much, sir.